Hi guys, as you all know that the phase 2 of SEBI Grade A Legal 2023 examination has been postponed to 17 September 2023, which means now you have sufficient time to prepare all the components as well as to revise all the components. But what if I say there are few things that you must know before appearing for the phase 2? So yes, guys, there are few things that you must know if you are appearing for the phase 2 of the examination. So we are going to discuss in this session the 5 important things before appearing in the phase 2 of the examination. So what are these things? Let's discuss one by one. But before that, one very important thing, guys. If you are appearing for the phase 2 of the examination, so it is mandatory for you to solve the previous year questions. By solving the previous year questions, you will get to know a lot of things. Like for example, what are the important topics? What are the least important topics, right? What questions can be asked from these topics, and what is the depth of the question that will be asked in the examination and what not. So previous year question will definitely give you some insight that will help you to clear the phase 2 of the examination. Now one more question, from where you can get these previous year questions. So guys, these PYQs you can get from the link given in the description box below. So go to the link, refer it, and download the previous 2 years paper of SEBI Grade A legal examination. Right now guys, let's continue then. So, if I talk about 5 important things to know before appearing for phase 2, so what are these things? The number first is that is paper 2 is the make or break deal. Yes, guys, paper 2 is the make or break deal. What do I mean by that? Guys, you all know that paper 2 has a weightage of 2/3, right? And paper 1 has a weightage of 1/3. This you know very well. So believe me, if you are doing good in paper 2, then you will be appearing in the interview. और यही उसके contrary, अगर आप paper 2 में अच्छा perform नहीं कर रहे हैं, then आपके interview में जाने की जो probability है वो बहुत कम हो जाती है, right? So you have to keep in mind that paper 2 has a weightage of 2/3 and you have to give your best in paper 2. Do I mean कि यहाँ पे आपको पेपर 1 अच्छे से नहीं करना है या फोकस नहीं करना है? नो गाइस, आई एम नॉट सेइंग लाइक एनीथिंग लाइक दिस. यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन पेपर 1 आल्सो, राइट? पेपर 1 भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. बट द थिंग इज कि अगर आपने पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म कर दिया या पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपने पेपर 1 में भले अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, गाइस यहाँ पे आपको जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली कम या ज्यादा हो सकते हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन कि आपने पेपर 2 कैसे परफॉर्म किया हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पेपर 2 में यू हैव टू गिव योर बेस्ट. अगर आपने पेपर 2 में अपना बेस्ट दे दिया, पेपर 1 आपने बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए, तब भी आपके चांसेस काफी अच्छे रहेंगे कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं. So this is what I mean by that paper 2 is the make or break deal. So you have to keep in mind that you have to give your 110% in paper 2, right? Second important thing is 65% is descriptive, right? If I talk about the phase 2 component, so guys, 130 out of 200 is descriptive. 100 मार्क्स का पेपर 1 एंड 30 मार्क्स का पेपर 2 वाला जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, विच मींस 65% इज डिस्क्रिप्टिव. एंड गाइस, सिंस 65% इज डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ पे आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे. आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है. इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस. 3 आंसर्स डेली लिखिए गाइस. बिलीव मी, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम एग्जाम हॉल में देख लेंगे जाकर, राइट? बट वो मेंटेलिटी विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू, किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगी. सो गाइस, कीप इन माइंड दैट डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट की प्रैक्टिस आपको एडवांस में करनी है और अभी से करनी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ नहीं हो पाएगा. वहां पे एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा जिसके चलते आपका पेपर खराब हो सकता है, राइट? सो कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट. अगर आपने स्टार्ट कर दिया सो वेल एंड गुड, उसको कंटिन्यू करिए टिल योर एग्जामिनेशन. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. जहां पे जिसका वेटेज 65% है, अगर उस पर आपकी कमांड नहीं है, सो यू कैन फील इट, आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि आपका सिलेक्शन कितना मुश्किल है, राइट? सो जो मेजोरिटी वाला कंपोनेंट है, देयर यू हैव टू हैव अ गुड कमांड, right? So you have to do it, you have to practice on a daily basis, and one very important thing that you have to follow the word limit very strictly. In the university exam what we do basically, हम वहां पे पेज पूरा भरते हैं, राइट? पेज भरने के हमें मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में. बट यहाँ पे वो अप्रोच काम नहीं आने वाली है. यू हैव टू कंप्लाई, यू हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट वेरी स्ट्रिक्टली. अगर आप वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करेंगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? सो कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑन अ डेली बेसिस एंड यू हैव टू follow the word limit very strictly, right? So this is the second thing that you know before appearing for the phase 2 of the examination. Number third is solve objective component in 3 rounds. What do I mean by that? Guys, जो आपका ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है, दैट इज 70 मार्क्स का जो पेपर 2 होने वाला है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, राइट? तो उसको आपको 3 डिफरेंट राउंड्स में पूरा सॉल्व करना है. क्या मतलब इसका? हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हो सकता है इनिशियली 30-40 क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो, ठीक है, और आपका पूरा टाइम उन्हें सॉल्व करने में चला जाए, और बाद के जो 30-40 क्वेश्चन हो वो काफी इजी हो, वन लाइनर हो, तो आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आपने सारा टाइम इनिशियली 30-40 क्वेश्चंस में ही वेस्ट कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी हमें नहीं रखनी है गाइस, ऐसे में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो आपको जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको 3 डिफरेंट राउंड्स में आपको सॉल्व करना है। पहले राउंड में आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन एक बार आप सारे देखेंगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको लग रहा है कि समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज स्किप करिए, आगे बढ़ जाइए, राइट। तो इस तरीके से पहले पूरे 70 क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसमें जिसमें आप श्योर है उसको टिक करते रहिए, उसको मार्क करते रहिए, और उसको फाइनली क्लोज करते रहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको पहले 70 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है गाइस, आपको पता है वहां पे जब भी हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं सेबी लीगल का, तो वहां पे आप कलर कोडिंग होती है, जहां पे आप कलर कोडिंग करके वापस से आप उस क्वेश्चन पर आ सकते हैं। सो जब आप पहला राउंड कर रहे होंगे, तो पहले राउंड में एक तो आप क्या करेंगे, जिसमें आप श्योर है, कॉन्फिडेंट है, उसको आप क्लोज कर देंगे, राइट, मार्क करके। जिसमें आपको लग रहा है कि 50-50 है, इसमें से आउट ऑफ 5 आई कैन एलिमिनेट 3 ऑप्शंस, बट 2 में कंफ्यूजन है, उसको आप डिफरेंट कलर कोडिंग पे कर दीजिए, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जब पहला राउंड पूरा कर लेंगे, 70 क्वेश्चंस आपके क्लोज हो जाएंगे, फिर वापस से आप आएंगे उन क्वेश्चंस पर जिनको आपने मार्क किया, जहां पे आप 50-50 श्योर है, तो फिर आप सेकंड राउंड में उनको सॉल्व करेंगे। थर्ड राउंड में आप आएंगे जहां पर आप 3 या 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो फिर उसको आप उनको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट इन 3 राउंड्स। ऐसी मिस्टेक मत करिएगा आप पेपर देखकर ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, राइट। ऐसे में हो सकता है कि आप 30-40 क्वेश्चन तक ही कर पाए और आपका टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में। सो कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट इन 3 डिफरेंट राउंड्स, राइट। नंबर 4 इज रिवीजन इज द की। गाइस ऐसे अभी आपको लग रहा होगा मैं ये कंपोनेंट कुछ नया पढ़ लेता हूं, अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा, इफ आई हैव नॉट रेड द सीआरपीसी येट, लेट मी कंप्लीट द सीआरपीसी। गाइस डू नॉट टच द सीआरपीसी, इफ यू हैव नॉट रेड येट, डू नॉट टच इट, राइट। उसको छोड़ दीजिए। अभी अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू रिवाइज द थिंग्स। सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, दैट शुड बी योर फोकस। कंप्लीटली जितने बार रिवीजन कर सके, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप या तो सीआरपीसी कर सकते हैं या पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, सो गाइस लीव द सीआरपीसी एंड रिवाइज द एंटायर सिलेबस। सिलेबस आपको पूरा रिवाइज करना, जितने ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। सो रिवीजन इज द की है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, तो आपको एक बार में रिटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सो दैट इज व्हाई रिवीजन इज द की, एंड मेक श्योर कि जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सके उतना ज्यादा आप रिवाइज करें यहाँ पे। Got it? So this is the fourth thing that you must know before the phase 2, and the last is give at least 5 full length mocks. Guys आपको at least 5 full length mock देना है, और 5 full length mock का मतलब क्या है, सेम उसी तरीके से उसी टाइम में उसे ही ड्यूरेशन में आपको पूरा सॉल्व करना है। पहले पेपर 1, देन पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव, देन पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव, राइट। तो आपको एक बार में 3 आवर्स के लिए सिटिंग रखनी है, और आपको पूरा फुल लेंथ मॉक्स वहां पे सॉल्व करना है गाइस, एंड ट्राई टू गिव एटलीस्ट 5 फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स देने का फायदा क्या होगा, आप यूज टू हो जाएंगे एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में। दो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, बट आपको पता रहेगा 3 घंटे में सिटिंग करनी है, और आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं लिमिटेड टाइम में, राइट। सो इस चीज का आपको आइडिया लग जाएगा बाय सॉल्विंग एटलीस्ट 5 फुल लेंथ मॉक्स। और सिर्फ 5 फुल लेंथ मॉक्स देना नहीं है गाइस, राइट। डू नॉट गिव मॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट, रादर यू हैव टू एनालाइज इट। आपको उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप 3 घंटे में उसको पूरा पेपर आप दे रहे हैं, तो उसको 5 घंटे में एनालाइज करिए, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग, पेपर क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो चीजें आपने पढ़ी थी उसको क्यों आपने गलत मार्क की, ठीक है, क्या सोच रहे थे, क्या माइंडसेट था आपका जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, एंड उसको क्रॉस चेक करना है ओरिजिनल आंसर के साथ, राइट। सो इस तरीके से हर एक फुल लेंथ मॉक के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि 5 फुल लेंथ मॉक आपने 2 दिन में ही दे दिए, नहीं, वो अप्रोच ही गलत, राइट। मॉक सिर्फ देने के लिए नहीं देना है, मॉक देने के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर मॉक। उसको एनालाइज करना है बहुत अच्छी तरीके से, ऑब्जेक्टिव को भी और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी, right. So keep this in mind, you have to give at least 5 full length mocks, and you have to analyze it, and the very important thing is evaluation of descriptive part. Guys ये must है आपके लिए। I already told you कि 65% of the phase 2 is descriptive। तो descriptive में आपको एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, that we had already discussed, right। अब आपको सेकंड चीज क्या करनी, जो भी आप मॉक्स दे रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू गेट इट इवेल्युएटेड। आपको उसको इवेल्युएट करना है गाइस, इवेल्युएट करवाना है किसी से जिसको उस डोमेन का नॉलेज होगा। होता क्या है, हमें लगता है कि हम आंसर लिख लेंगे और हम एक सिंगल डायमेंशन से यूनिडायमेंशनल आंसर लिख रहे होते हैं, राइट। पर जब आप उसको किसी एक्सपर्ट से इवैल्यूएट करवाते हैं, तो वो आपको अलग अलग डायमेंशंस भी बताते हैं कि ये डायमेंशन आपने मिस कर दिया, यहाँ पे केस लॉज आने थे,
राइट, यहाँ पे सेक्शन मेंशन करना था, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि व्हेनेवर यू आर गिविंग डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन, फॉर वॉट एवर, फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू आर अपियरिंग एनी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, गाइज इन दैट केस यू हैव टू गेट इट इवेल्युएटेड। तो आपको उसका इवैल्यूएशन करवाना है, और इवैल्यूएशन में जो भी फीडबैक मिल रहा है उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक्स में। तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 5-6 फुल लेंथ मॉक्स देंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, बहुत अच्छे लेवल पर होंगे जहां पर अभी हैं आप, राइट, वहां से। Got it? So these are the 5 important things that you must know before appearing in the phase 2 of the examination. So guys, इसीलिए हमने आपके लिए भी अलग-अलग courses launch किए हैं, right? You can see here live crash course and the test series for phase 2 specifically, right? तो यहाँ पे if I talk about the feature of test series, तो यहाँ पे you will get chapter wise test. Chapter wise आपको टेस्ट मिलेंगे, whatever topics are mentioned in the syllabus, you will get the quiz accordingly, the topic wise, the chapter wise test. Then second is full length mock test with evaluation. So here we are providing you full length test, and here we are also providing you the evaluation. We will let you know what are the areas where you have to improve, what are the mistakes you are committing while writing the answer. We will let you know each and everything, right? So this is very, very important part, evaluation part since 65% of the paper is going to be the descriptive, and one-to-one mentor support will always be there. Second course is live crash course, guys, जो कि already launch हो चुका है, और live classes भी हमारी हो चुकी है, राइट, लाइव क्लासेस भी हमारी हो चुकी है यहाँ पर, बट यू विल गेट दीज लाइव क्लासेस इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म। तो अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है और आप अगर चाह रहे हैं कि कोर्स ले ले, तो वहां पे लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, बट वो लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू। और यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, जो इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट चीजें हैं फ्रॉम द सेबी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। सिक्योरिटीज लॉस विच इज द मेजर पेन पॉइंट ऑफ द एस्पिरेंट्स, गाइस, उसको हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सारे रूल, सारे रेगुलेशन और सारे एक्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। सो इफ यू वांट टू अवेल दीस क्लासेस, गाइस, आप एक क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं। Here we are also providing short notes. Whatever content we are teaching in the live classes, we are providing them as a short note. और टेस्ट सीरीज के सारे फीचर you will also get in the live crash course. इस क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज के भी सारे फीचर मिलेंगे, राइट, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। Then one-to-one mentor support is always there. ठीक है, सो दोज हु वांट टू अवेल दीज कोर्सेज, आपको लगता है जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है, यू कैन अवेल दीज कोर्सेज बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, एंड वी आर आल्सो रनिंग अ वेरी गुड डिस्काउंट, उनको भी आप अवेल करके इन कोर्सेज को लेकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल था ये, और आपको पता चला कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर अपियरिंग फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू वेरी मच।